must have positive or negative charge. They are called ions. An atom or group of atoms which have positive or negative charge, they are called ions. I am going to give the example of an atom. For example, I am writing here sodium. This is an ion. I am going to write here potassium. This is an ion. I am going to write here group of atoms. They are. I am going to write here ammonium radical. Right? I am also going to write from my own side H2O. One electron is lost. H2O positive ion. One electron is lost. So these are positive ions. Next, in the next group, I'm going to write that negative radicals are negative ions. I'm going to write here negative. This is it has negative charge. Next one, I'm going to write here NO3 minus. There it has negative charge. The next one, I'm going to write here F minus 1. They have negative charge. It means ions we have two types. One is negative ions. One are positive ions. These are atoms. I wrote here atoms. These are atoms. These are group of atoms. Group of atoms. Means if an atom or group of an atom, they have positive or negative charge, they are called ions. So the positive ions are also called cations. Positive ions are also called cations, or we call them positive radical. Positive radicals. Cations are positive radicals. Next one, negative ions are also called anions, or we say to them negative radicals. Negative radicals. Positive radicals and negative radicals. Simply we say them cations and anions. So why they are important? We have started their common ion. It's very important. So I'm going to the presentation of what is common ion. Still we have not started that. We just know about the ion. Positive or negative charge particles, they are called ions. So what are common ions? I'm going to come here. I'm writing an example. For example, HCl. If this is dissolved in water, it will give positive ion and negative ion. The next one, here is sodium chloride. If this is dissolved in water, it will give what? What it will give? Sodium ion, what it will give? Sodium ion and chloride ion. These are, one is acid, one is salt. They might be acids, they might be salts, they might be inorganic compounds, organic compounds, anything. I have dissolved this in one beaker. One is giving chloride ion, one is giving the next one is also going chloride. So there is something common in their products. There is something common. Both gives one similar. Like this one, it gives chloride. This one also gives chloride. You see, this is the similarity. These are the similar ions. Both the compounds are giving similar ions. So those ions which are produced by the similar ion produced by the components or by the compounds, by the acids, by the salts, they are called common ions. So we say to these ions that they are common ions. Common means present in both. So this is common. I say chloride common ions because it is present in HCl and it is present in sodium chloride. This is common. So I cannot say this is hydrogen ion, this is sodium ion. I cannot say to them common ions because they are different. Those ions which are similar, they are called common ions. So chloride, in this case, this is common ion. I'll give the next example for that, the positive ion. I'm going to write here, for example, potassium chloride. It will give potassium chloride, potassium ion, and chloride ion. The next one is potassium nitrate. Potassium nitrate. If this is dissolved, it will give potassium ion and nitrate ion. What's you see similar in this? Potassium is similar in both. I dissolved potassium chloride and potassium nitrate.
potassium chloride gives potassium, potassium nitrate gives potassium. This is similar. So potassium here is the common ion. Potassium is the common ion. Here chloride is the common ion. Here chloride is not the common ion. Chloride and nitrate here they are not the chloride ion. It means common ions are of two types. Common ions are of two types. They might be cation, they might be anions. कॉमन आयंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, कॉमन आयन नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन आयन, ये जो ऊपर वाला पोटेशियम आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे केटाइंस है, ये केटाइन कॉमन आयन है। यहाँ नीचे आपको क्लोराइड नजर आ रहा है, ये एनाइन कॉमन आयन है। तो जो हमारा मेन एसिड होता है कॉमन आयन, कॉमन आयन का मतलब वो आयंस जो सिमिलर है, साल्ट्स में, एसिड्स में, बेस में अगर सिमिलर आयन प्रोड्यूस हो रहा है, उस सिमिलर आयंस को हम कॉमन आयन कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। मींस कॉमन आयन है जो सिमिलर हो दोनों में। ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इसके बारे में क्वेश्चंस कि कॉमन आयन क्यों जरूरी है, ये हम पढ़ते क्यों है। इससे जो अगला टॉपिक है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। समझ आए, मैंने कॉमन आयन चूज किया था, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक है, जो होमवर्क है आपका, वो कॉमन आयन इफेक्ट है। आप कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ो कि वो क्या है, समझ आए। तो मतलब अभी मैं ये समझा रहा हूँ कॉमन आयन ये क्यों जरूरी है, या कॉमन आयन इफेक्ट क्यों जरूरी है। ये जरूरी है इसलिए ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के एक साल्ट है, इसमें इम्प्योरिटीज है, या इंडस्ट्री है, किसी केमिकल में इम्प्योरिटीज है, इसको प्योर बनाने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट इसका यूज जो है वो क्रिस्टलाइजेशन बनाने के लिए यूज हम करते हैं। आपने पढ़ा है प्रैक्टिकल में कि सोडियम क्लोराइड को हम डिसॉल्व करते हैं, इससे HCl पास करते हैं, हमारे पास प्योर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल आ जाते हैं। तो मतलब अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल में तो आपको HCl चाहिए, बिकर्स चाहिए, और सोडियम क्लोराइड का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो चाहिए, फिर हम HCl पास करते हैं और सोडियम क्लोराइड का जो प्योर क्रिस्टल है वो हमारे पास आ जाते हैं। मतलब अगर हम प्योर कंपाउंड बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो कॉमन आयन इफेक्ट, ये तरीका हम अप्लाई करते हैं। और ये टॉपिक रिलेटेड है लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड है। एनी क्वेश्चन अपन कंटेक्ट मैक्सिमम रहे। आप यहाँ पे लिखते हैं ये, और कोशिश करते हैं कि एक लाइन आधा लाइन लिखने के बाद स्टूडेंट को आप मुखातिब होंगे तो स्टूडेंट आपका अलर्ट बैठा होता है, ठंडे होता है, एंगेज हो रहा होता है। अगर एज ए टीचर आप यूं करके लिखते रहेंगे, आपको पीछे पता नहीं है और स्टूडेंट को आगे नहीं पता कि आप लिख क्या रहे हो। क्लियर बात ये, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड के आगे खड़े हो जाते हैं, लिख रहे हैं, सारा व्हाइट बोर्ड लिख रहे हैं, बोल रहे हैं बेशक, लेकिन स्टूडेंट को नजर नहीं आ रहा कि आप लिख क्या रहे हो। आपने थोड़ा सा लिखा, समझाया उनको, साइड पे आप खड़े हैं तो बच्चा देख के लिख भी रहा है, आपकी बात सुन भी रहा है, आप भी आई कांटेक्ट में हैं। ये एक टीचिंग में होता है। दूसरा आपके पास ये है कि जी आपके डेट टॉपिक आपके पास आ गया, SLO अदर देन आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन है तो अच्छी बात है। अदरवाइज होता ये है कि मैं अगर उस पर स्टार्ट दूँ इसको, तो जो मैं कह रहा था कि आपने प्री नॉलेज क्वेश्चन करने हैं, तो आप इनसे ये पूछेंगे कि जी चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज। अब दे विल आस्क यू, दे विल गिव द आंसर, क्योंकि मैंने कहा ये रियलिस्टिक आपकी क्लास है। आपने नहीं बताना कि ये मेरा प्री नॉलेज का क्वेश्चन है, नो। आपने उससे क्वेश्चन करना था कि चार्ज क्या होता है, जी ये चार्ज कहलाता है, डिफाइन द चार्ज। आप बताएं जी, आप बताएं। जब आप चार्ज वो डिफाइन कर लेते हैं तो फिर आप उबैदुल्ला को जगाएं कि जी व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज, वो फिर बताएगा उसमें नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। ये फिर आप प्री नॉलेज के लिए आपने क्या करना है, ये दो एग्जांपल देनी है कि जी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किन किन पे होता है, क्या होता है। फर्स्ट किया जी आपने कहा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आप इंट्रोड्यूस आपने खुद बताए, जो कि क्वेश्चन इनसे पूछने वाले होते हैं, जो प्रैक्टिकली आप कर रहे होते हैं। गुड वे था उसमें, लेकिन लिंक कहाँ बनेगा कि जब आप इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं तो अब आपने कहा कि ये कॉमन क्यों है, दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन आयन। अब आप कॉमन आयन टॉपिक है, कॉमन आयन को डिफाइन करना शुरू कर देंगे।
व्हाट इज द कॉमन आइन? ऐसे आइन जो दोनों में आपके पास नजर आ रहे होते हैं। कॉमन आइन में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने एक एग्जांपल वहाँ पे समझा दी है कि यह पॉजिटिव वाली है, दूसरी एग्जांपल आपने यहाँ समझाई है ये नेगेटिव वाली भी है। टॉपिक आपका इंट्रोड्यूस हो गया कि जी नो आवर टॉपिक इज अ कॉमन आइन। अब आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है, आप उसकी डेफिनेशन बताते हो, फर्दर उसकी जो भी एलोबरेशन है वो बताते हो और डिस्कस करते हो। एक जब भी वाइट बोर्ड आप यूज़ करें, जब भी वैसे बता रहा हूँ क्योंकि ये वाइट बोर्ड छोटा है, हो सकता है आपकी प्रैक्टिस हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। वाइट बोर्ड जब भी आप यूज़ करते हैं, अगर बड़ा वाइट बोर्ड है तो आप लाइन लगा लें, पार्टीशन उसकी कर लें। ये हिस्सा आपने फिल कर लिया यहाँ खड़े होके, फिर आपने इस हिस्से को यहाँ खड़े होके करना है ताकि स्टूडेंट अगर जो वीक है लिखने में वो उसके सामने है और अब आप इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं तो देखो आपका आई कंटेक्ट भी साथ रहेगा, या आप चीज़ें लिख रहे हैं या आपने फिल कर दिया सारा। इस पोर्शन से बच्चा जो पीछे है अगर वो लिखता आ रहा होगा, यहाँ आप कर रहे हैं जो आपके साथ साथ चल रहे हैं वो, और फिर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको आप रब करते हैं और इस तरफ आते हैं तो वो आपके पास चल रहा होता है, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो कि सर ने मौका ही नहीं दिया, हम अभी तक लिख रहे थे उसने सारा मिटा दिया, पहले खुद ही आगे खड़ा रहा। तो ये हो सकता है आप वहाँ कर रहे होंगे बहुत सारे, अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आपका वाइट बोर्ड का यूज़ है। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन में था कि हाउ वी यूज द वाइट बोर्ड, हमें ये अंदाज़ा हो, पता चले कि वाइट बोर्ड का कैसे यूज़ करेंगे। ये आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। आपने कॉमन आइन समझा दिया, कॉमन आइन समझाने के बाद जब आपकी प्रेजेंटेशन आप समझ रहे हो ख़त्म हो गई जी, बस ये है। अब आपने जज करना है, दोबारा असेसमेंट की तरफ जाना है, फिर आपने पूछना है हाँ जी आइन क्या होते हैं, कॉमन आइन क्या होते हैं। बेशक आप एक क्वेश्चन करो या दो करो, उनसे पूछोगे वो आपको बताते हैं जी कॉमन आइन की ये डेफिनेशन है, दैट मीन नाउ इट इज एन होमवर्क आपके ऊपर। तो ये एक प्रोसेस आप करते हो और इस तरह आपकी एक सीक्वेंस चल रही होती है। यस क्लियर? उसमें कोई क्वेश्चन है फिलहाल तक तो मज़ीद पूछ लें, फर्दर फिर हम एक आध प्रेजेंटेशन लेते हैं। और बाकियों से तो मैं लूँगा उबैदुल्लाह लाजमी तैयार हो, कैसे तो मेरा प्यारा वाला स्टूडेंट है, इसने तो देनी ही देनी है प्रेजेंटेशन, बाकी शायद उसमें है। जी क्या पूछते थे सर? जैसे अपने कहा कि वाइट बोर्ड यूज है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं अगर टीचर इस तरह कर ले कि ये सारे इंट्रोडक्शन करके दूसरे आपकी की तरफ ले, लेकिन वो इस तरह करें तो आपको मुकम्मल तौर पर वो सब में देखो जब आप पता नहीं मारना पानी पीते रहना। बिल्कुल इसी तरीके से है कि हाफ लाइफ का अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बेस पर देखें कि आपके पास कितना अमाउंट जो है रिएक्शन का वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है, मतलब कितने टाइम ड्यूरेशंस में क्या से वो चेंज हुआ है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और भी टर्म मौजूद है, वो है इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, मतलब उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? बिफोर चेंज, यानी कि अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले जो है कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। इसके अलावा और इससे टोटल कंसंट्रेशन, कांस्टेंट कंसंट्रेशन जो रिएक्शन से पहले मौजूद है, मतलब अभी तक कोलिजन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन कहेंगे। एक और टर्म भी यहाँ पे आ रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपके पास क्या होगा, मतलब ये भी प्रीवियस नॉलेज में होगा, क्योंकि रिलेशनशिप तक जब हम पहुंचेंगे इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके होंगे पहले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? एक सबमिशन किसी भी कंसंट्रेशन की जो एक्सप्रेशन है उसकी सम सब, यानी कि आपके पास अगर रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट एक्सप्रेशन है तो उसमें जो कंसंट्रेशन का जो सम है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली तौर पर अगर हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो एक लिहाज से इसका बैकग्राउंड था इस एसओ का, कि जिसमें हमें हाफ लाइफ का पता हो, इनिशियल कंसंट्रेशन का पता हो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का भी जो है इसका भी हमें मालूम हो। अब हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसमें हमने किस चीज़ को सीखना है। तो इसमें जो सीखने वाली जो चीज़ है, जब हम इनकी आपस में रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हमें इसका
की जनरल इक्वेशन हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हम तमाम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को उस जनरल इक्वेशन की बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकें। तो इस लिहाज से अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, जो कि जनरल इक्वेशन है, स्पेसिफिक नहीं है, वरना हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अलग हम हाफ लाइफ की इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो जब इसके हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आती है, यानी कि टी हाफ जो हमारे पास मौजूद है ये हाफ लाइफ को शो कर रहा है, के कांस्टेंट है, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और यहाँ पर ए जो मौजूद है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, जो एन हमारे पास मौजूद है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर हमने किसी की भी हाफ लाइफ को पहले से मालूम करना है कि कितने टाइम के बाद हाफ हमारे पास रिएक्शन की अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी होगी, तो उसके लिए हमें पहले से यहाँ से हम उसकी एक यहाँ से कंसंट्रेशन बेस हाफ लाइफ उसकी फाइंड कर सकते हैं। आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से वो डिपेंड कर रही होगी। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। जब n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी 1 - 1, और 1 - 1 जो हमारे पास मौजूद है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो कुछ भी हो उसकी हाफ लाइफ वैसी ही रहेगी जैसे आपके पास पहले थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें 2 मोलर सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें आप 3 मोल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास यही होगा कि आपके पास अगर आपने 2 मोल से रिएक्शन स्टार्ट किया है पर डेसीमीटर क्यूब, या आपने 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिएक्शन स्टार्ट किया है, मतलब जिससे भी आपने उसको स्टार्ट किया है तो एक लिहाज से उसकी हाफ लाइफ वही रहेगी, मतलब उसकी हाफ लाइफ में किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब उसकी हाफ लाइफ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जो कि यहाँ पर इस वक्त मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपके पास एक लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के आपके पास हो जाता है। अगर हम सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। अब अगर आप सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसकी अगर आप इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका मतलब है अगर आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ पीरियड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर एक रिएक्शन था जो कि फर्स्ट ऑर्डर का था, सेकंड ऑर्डर का था, उसकी आपके पास जो हाफ लाइफ थी एक जैसे 20 मिनट्स, लेकिन हमने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। जैसे कंसंट्रेशन हम डबल करेंगे तो वहाँ से हाफ होना है, यानी कि वो 20 मिनट में जो कंप्लीट हुआ था अब उसकी जो हाफ लाइफ होगी वो 10 मिनट्स हो जाएगी, मतलब वो डिक्रीज एक लिहाज से हो जाएगी, जो कि हम मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपके पास जो हमारे पास SLO था उस SLO के अंदर हमने रिलेशनशिप फाइंड करनी थी हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में हमने ड्राइव करना था। तो इसका 2 एग्जांपल यहाँ पर मैं दे चुका हूँ, यानी कि 2 एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। तो अब इसके बाद हमारे पास डिफरेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी मौजूद है, उसके भी हमने एक लिहाज से इसी तरह से हम उसके रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है और उसके रिलेशनशिप्स भी आपने खुद फाइंड करनी है। खुद फाइंड करने देखें क्या रिलेशनशिप्स आती है इसकी, या बताएं कोई बताए मुझे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की जो आपके पास रिजल्ट है वो क्या आएगा। अगर उसकी कितनी हाफ लाइफ हो, कितनी कंसंट्रेशन हो, तो उसका जवाब जो है आपके पास यहाँ से क्या बनेगा। अगर मैं उसकी यानी कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ तो उसकी हाफ लाइफ में कितना अफेक्ट आएगा, कितना चेंज आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका एक आपको ये पॉइंट बता दूँ कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो कि आपने इसी तरीके से ड्राइव करना है, उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है किसी एक खास कंसंट्रेशन के लिए और वो आपके पास है फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स है, या हम इसको कर देते हैं 12 मिनट्स है। तो अब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमने डबल कर दी है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो उसकी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना आएगा डबल कर इसका 6 आएगा, कितना आएगा 6 मिनट्स आएगा। कोई और बताए 3 मिनट्स आएगा। क्यों 3 मिनट्स आएगा? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ना इसमें, लेकिन 3 - 1 है तो आपके पास ये हो जाएगा स्क्वायर। आपने अगर डबल किया है, क्या किया डबल किया है, तो स्क्वायर होने की वजह से वो 4 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स आपके पास टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप उस 12 मिनट्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 मिनट्स आपके पास उसकी क्या आ जाएगी हाफ लाइफ आपके पास आ जाएगी। तो ये एक SLO था जो आप में से किसी ने इसका आंसर भी दे दिया कि आपके पास 3 मिनट्स आपके पास आएगा। तो इस SLO को मेरे ख्याल हम अचीव कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर आप इसका होमवर्क अगर आप करें तो
तो वो आपके पास डिफरेंट आपके पास नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसकी वैल्यू को पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं।